Hello students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So now let us continue with the next topic of the chapter, that is variation of conductivity and molar conductivity with concentration. ठीक है. So specific conductivity, what is the definition और इसका formula क्या है, ये अभी हमने previous video में properly detail में इसको discuss किया था. ठीक है. So now we have to discuss its variation when we dilute the solution, or you can say how this specific conductivity that varies with dilution. ठीक है. So specific conductivity ऑलवेज डिक्रीजेस, ये आप नोट कर लेना. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है जिसको हम कापा से डिनोट करते हैं, सो दैट डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन फॉर वीक एज वेल एज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो, दोनों के लिए ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है विथ डाइल्यूशन. ठीक. सो बिकॉज इट इज़ द कंडक्टेंस एज, अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो क्यों डिक्रीज कर रही है डाइल्यूट करने पर. सो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है दैट इज़ द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. सो ये हमने डेफिनेशन इसको डिटेल में हमने किया था प्रीवियस वीडियो में. सो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 centimeter cube of the solution of an electrolyte. So now how does it vary, or you can say what is the reason behind its decrease with dilution, कि जब dilution increase होती है the number of ions present per centimeter cube of the solution decreases. So what does it mean कि suppose ये हमारे पास क्यूब है एक. ठीक है. इसको आप एक क्यूब लेकर चल रहे हैं, तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस है दैट विल बी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस. अब अगर आपने इसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी डाइल्यूशन आप बढ़ा दोगे, उसको और डाइल्यूट कर दोगे, तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा. तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वी आर नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आयंस. तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, or you can say the number of ions present in this 1 centimeter cube, that will decrease. So that's why we can say that specific conductivity, or you can say specific conductance, that decreases with dilution. So this is the reason behind the number of ions present in 1 centimeter cube, that will also decrease. ठीक है. So now next is the variation of the molar conductivity. पहले अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फिर से एक बार आपको बता दूं, ओवरऑल दैट डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन. ठीक. नाउ है नेक्स्ट हमारे पास वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. अब एज वी नो व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, सो दिस इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इट इज मेड टू डिसॉल्व इन एनी, यू कैन से इन वाटर. ठीक है. सो इट इंक्रीजेज with increase in dilution for both weak and strong electrolytes. इसको molar conductivity जो है that increases always whether the electrolyte is weak or whether the electrolyte is strong. ठीक है. दोनों के केस हम separately study करते हैं. The reason behind the increase in the molar conductivity for weak electrolyte and strong electrolyte, that is different, but overall both of this variation in molar conductivity for both these types of electrolyte that increases. So पहले हम देखते हैं in case of strong electrolyte. As we know what are strong electrolytes, so which 100% which undergo 100% dissociation when they are made to dissolve. So in case of strong electrolyte, as it ionizes completely, as we know this, and the number of ions per unit volume is already large, but with dilution the inter-ionic forces, they are expected to decrease and ionic mobility increase. So this is the basic reason behind what is why or you can say what is the reason behind the increase in the molar conductivity for strong electrolytes. क्योंकि strong electrolyte already ही 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी उसमें जितने हैं वो 100% डिसोसिएट हो रहा है. बट डाइल्यूट करने से या डिल्यूशन इंक्रीज करने से क्या होता है कि
उन दोनों आयंस के बीच में, आयंस के बीच की जो इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो आयनिक मोबिलिटी मतलब आयंस के फ्रीली मूव होने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज देयर आर डिक्रीज इन द इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो विच इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टेंस। ऑब्वियसली जब आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट फैक्ट है related to this molar conductivity. This increase in molar conductivity that will continue till a stage is reached when interionic forces becomes negligible. So this is important. So ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, अभी मैं ग्राफिकली भी आपको शो करके उससे समझाती हूँ प्रॉपरली, बट दिस as we keep on increasing the dilution, the molar conductivity that will keep on increasing. So a stage will reach when interionic forces becomes negligible, and further increase in dilution that is not likely to bring about any change in the molar conductivity of the electrolyte. So जब ये स्टेज आ जाती है कि इतनी ज़्यादा हम डाइल्यूशन कर दें कि दो आयंस के बीच की जो इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो निगलिजिबल हो जाए, ठीक है। जब निगलिजिबल हो जाएगी तो देन देयर इज़ यू कैन से व्हेन फर्दर इंक्रीज इन डाइल्यूशन, और आफ्टर दैट कि उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो निगलिजिबल हो गई हैं, उसके बाद भी अगर हम डाइल्यूट करते रहते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस जो हैं, अट्रैक्शंस जो हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं, और फर्दर डाइल्यूट भी करेंगे हम तो वो इतना रिमार्केबल चेंज उनकी कंडक्टेंस में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज known as the limiting value of molar conductivity. So इस स्टेज पर जब आप उसकी वैल्यू नोट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो दिस इज नोन एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और नियरली ज़ीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। mean to say when we reach towards the infinity, or we can say when the dilution is too much dilution, ठीक है, कि further dilute करने से उनकी मोलर कंडक्टिविटीज़ में रिमार्केबल चेंज नहीं आता है, एंड concentration that almost approaches to ज़ीरो। तो इस स्टेज पर जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज़ नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी, or you can say the limiting value of molar conductivity, or infinite you can say at infinite dilution it happens. So जब ये कब कंडीशन आती है, जब concentration that approaches to zero, molar conductivity that becomes the conductivity at infinite dilution, or you can say limiting value of molar conductivity, ठीक है। So ये कंडीशन मैंने आपको यहाँ भी लिख करके बता दी है। So this is the difference between दिस लैम्डा एम नोट या इन्फाइनाइट का साइन लगा है, तो व्हाट डज इट मीन कि दिस इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक। देन नेक्स्ट वी हैव Debye-Huckel-Onsager, that equation is also there, Debye-Huckel-Onsager equation. So Debye-Huckel-Onsager that gave the following equation to correlate the molar conductance at any concentration and molar conductance at infinite dilution, कि ये हमारे पास है molar conductance at any concentration and this is the molar conductance at infinite dilution, that is related, these two are related with each other. So this is equal to molar conductance at any concentration equal to molar conductance at infinite dilution minus AC1/2, ठीक। अब what is A is constant whose value depends upon the viscosity and dielectric constant of the solvent. So its value depends upon the solvent कि उसकी viscosity कितनी है और उसका dielectric constant कितना है उस solvent का, and this equation that is also known as Debye-Huckel-Onsager equation. सो अभी हम अगर इसका ग्राफ देखते हैं तो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द कंसंट्रेशन,
ठीक। और ये जो वैल्यू है इंटरसेप्ट दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ limiting value of molar conductivity and minus a will give us the slope, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो आई हैव रिटन, यू कैन नोट इट डाउन। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं एक बार कि ग्राफिकली कैसे वेरी हो रही है, इसी चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। चलिए मैं इसको हटा देती हूँ, तो आप इसको इस ग्राफ को अच्छे से देखिए ज़रा। ये सी, सो दिस इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, टुवर्ड्स दिस साइड इट इज़ इंक्रीजिंग एंड दिस इज़ द रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और सी 1/2 you can say. So suppose this is any electrolyte KCl or any strong electrolyte, as we are talking about the strong electrolytes. So जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, सो इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके जो जहाँ पर ये टच करेगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। सो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑल्सो चार्जेस ऑन द केटाइंस एंड एनाइंस, ठीक। चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है एनाइंस और केटाइंस का चार्ज कैसा है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में, ग्राफ तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। सो अब थोड़ा सा हम ए की वैल्यू के लिए देख लें। NaCl as NaCl, it has Na plus and Cl negative ion, so this is named as univalent electrolyte, ठीक। और you can say 1,1 type of electrolyte. so 1,1 type मतलब दोनों केटाइंस और एनाइंस के ऊपर जो है उसके 1 यूनिट चार्ज है, ठीक। सो नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2, सो ऐसे ही दिस इज Ba2 प्लस और Cl2, दो Cl हैं तो एक Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है इंटू 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई और यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट और 2,1 electrolyte. So same is the case with calcium sulfate. Now as you understand, both have the valencies 2 plus and 2 negative, so this is bivalent or 2 electrolyte. Then another fact related to this is electrolyte of a particular type, they have same value of A, so this is important. पर्टिकुलर सेम टाइप, यानी कि कैल्शियम सल्फेट जो है ये भी 2 टाइप है, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट भी 2 टाइप है, तो इन दोनों के लिए ए की वैल्यू जो है वो सेम होगी। सेम वे अगर आप KCl और NaCl का लेते हो जो कि 1,1 टाइप है, तो उन दोनों के लिए जो है वो वैल्यू सेम होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कर्व ऑब्टेन्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट that shows that there is a small increase in delta M with dilution because strong electrolyte is already completely ionized in the solution and number of ions remains constant, क्योंकि dilute करने से strong electrolyte के number of ions increase नहीं होते हैं, rather उनकी forces of interaction जो है आपस में वो decrease होती है, जिसकी वजह से उनकी mobility increase होती है and this leads to the increase in the molar conductivity. Clear? So next case let us discuss about in case of weak electrolyte. अब weak electrolyte में कैसे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो वेरी हो रही है, क्योंकि दोनों में ही इंक्रीज होती है बट द रीज़न इज डिफरेंट। अब weak electrolyte के केस में there is a very large increase in the molar conductivity with dilution near the infinite dilution. So since on dilution the degree of ionization increases, so this is the ultimate reason for the increase in the molar conductivity, that with dilution the degree of ionization increases, ठीक है। so which increases the number of ions in the solution. अब देखो जैसे से हम ये dilution करते जा रहे हैं तो that is being increased. so एक particular dilution पे there is a steep rise in the molar conductivity, so because the number of ions they are also increasing, ठीक, number of ions are increasing, so with this so there is a steep dilute कर रहे हैं हम इसको, और degree of ionization भी increase हो रही है, तो number of ions they are being increased with increase in the degree of ionization, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक steep rise आएगा यहाँ इसके ग्राफ में। सो here as I told you the reason
आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दोनों में रीज़न डिफरेंट है, बट देयर इज़ अ इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी इन बोथ द केसेस. ठीक है. Then so now one more point, this is very very important, it does not reach a limiting value. so अब आप ग्राफिकली भी देखो कि हम कभी भी इसको जैसे एक्स्ट्रा, पीछे हमने ग्राफ स्टडी किया था तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम उसको उसकी इन्फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को नोट कर सकते थे, बट हेयर वी कैन नेवर हैव द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. So next point related with this is when the concentration approaches to 0, degree of ionization approaches unity. That is electrolyte almost undergo complete ionization. ठीक है. Then next is the molar conductivity that increases sharply near high dilution. Hence extrapolation at infinite dilution is not possible. This is very very important point कि जब at highly when we do the you can say dilution to a large extent, or you can say there is an increase you can say molar conductivity that increases sharply near high dilution or when concentration almost approaches to 0. so at this now there is steep rise, so that is parallel to this. so by extrapolating we can't have the value of limiting molar conductivity. ठीक. Next is experimentally it is not possible to determine limiting value of molar conductivity for a weak electrolyte, because although ionization is complete but number of ions per unit volume is so low that the conductivity cannot be measured. This is also very very important point. ठीक. नेक्स्ट है कि लाइक अभी हमने कहा कि हम इनकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इसको ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि एक्स्ट्रापोलेट करें और हम इसकी कैलकुलेट कर लें डेल्टा एम नो. ठीक है. ये कैलकुलेट नहीं हो सकती है, बट दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉलरॉशेस लॉ. एंड ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक इसका यही है इस चैप्टर का, और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलरॉशेस लॉ को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉशेस लॉ आल्सो, एंड वन इज दिस कि हाउ कैन वी calculate the molar conductivity for the weak electrolytes at infinite dilution. ठीक है. सो एक बार ग्राफिकली भी आप दोनों ग्राफ्स को इसको देख लो. ठीक है. दोनों को कंपेयर करके मैं बता रही हूँ आपको. ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वेरिएशन है एंड दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर बोथ दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. पहले हमने सेपरेटली देखा, अब हम दोनों को क्लब करके देख रहे हैं. सो दिस इज़ फॉर KCl. देखिए इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ टच करेंगे तो देन वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग वैल्यू फॉर मोलर कंडक्टिविटी फॉर KCl. ठीक है. यहाँ KCl की एग्जांपल ये. सो फॉर एसिटिक एसिड विच इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो ये देखो यहाँ पर. सो दोनों को आप एक ही ग्राफ में दोनों कर्व्स हैं तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.